Hello, good morning. Hello. Yes, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening. day, sir. Good. Yes, good evening it should be. No? So, we are studying classification of elements and periodicity in properties. And we have studied a lot like history of periodic table, Mendeleev's periodic table, its defect, Moseley's findings, modern periodic law and periodic table, long form of periodic table, and classification of elements based on electronic configuration. And we have classified elements into 4 classes: S block, P block, D block, and F block. Okay? Today we are going to classify the elements on the basis of properties. On the basis of properties, elements are of, again, 4 types. 4 types. Just see. These are the previous slides which we have studied already. And from here, we are going to start this is classification of elements based on properties. On the basis of properties, again, elements are classified into 4 classes. First is metals, second is non-metals, third is metalloid, and fourth is noble gases. Metals, non-metals, metalloids, and noble gases. This is classification based on properties. If you see the table, and we have discussed study that S block, D block, and F block, all the elements are metals. S block except hydrogen, D block and F block complete. So all the elements in S block except hydrogen, elements of D block and F block are all metals, and some elements of P block are also metals. Okay? So nearly 80 elements are metals. Among the stable elements. Okay? And nearly 10 to 12 elements are non-metals, 4 to 5 are metalloids, and 6 are noble gases. So you can see the table and you can decide. Okay? So we start from metals. What are metals? Metals are elements having 1, 2, or 3 electrons in valence shell. जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो सारे मेटल्स हैं। मतलब जिसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1 है या NS2 है या NS2NP1 है, ये सारे मेटल्स होंगे। S ब्लॉक में S1 S2 होता है, D ब्लॉक के सब के लास्ट में S2 होता है, F ब्लॉक के सब के लास्ट में S2 होता है ना। इसलिए ग्रुप 1 to 12 और नीचे जो लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं ये सारे तो मेटल हैं ही। इसके अलावा हम देखेंगे आगे पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। बताओ, all the metals are solids, most are hard, some are soft also. Metals of group 1, sodium, potassium, rubidium, cesium are soft. Metals are hard, all are solid except mercury. Keep in mind, mercury is the only liquid metal. मरकरी एकमात्र लिक्विड मेटल है। कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ है गैलियम सीजियम भी लिक्विड है, ये गलत है। गैलियम सीजियम लो मेल्टिंग मेटल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड हैं, इसलिए इसमें कभी नहीं आइएगा। मेन पॉइंट देखिए क्या है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम केमिस्ट्री में है नहीं पढ़ना अच्छा है गलत पढ़ने से कुछ कंसेप्ट गलत हो जाएगा अगर, तो वो फिर आपको एग्जाम तक परेशान करेगा। ठीक है, मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल, याद रखिए। मैंने क्या कहा, मैं हर दिन कहता हूं कि यही याद करना है क्या ट्रेंड है और उसमें एक्सेप्शन क्या है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, कीप इन माइंड। ठीक है, और वो जो मैंने कहा कि जिसके वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल है, उसके भी 3 एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल नहीं है। हीलियम में 1s2 है, वो मेटल नहीं है। और बोरन में भी है 2s2 2p1, 3 है ना, लेकिन वो मेटल नहीं है। तो याद रखना होगा जिसके वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम और बोरन। अब ऐसे ही जब आगे जाएंगे अगले स्लाइड में हम लोग वहां पढ़ेंगे कि जिसके वैलेंस सेल में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो सब नॉन मेटल हैं। वहां भी 3 एक्सेप्शन होंगे, 3 लेड एंड बिस्मथ। 3 एलिमेंट जिसको मेटल होना चाहिए वो नॉन मेटल है, अब बदला में 3 और आ गया, जिसको नॉन मेटल होना चाहिए वो मेटल हो गया। कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम, बोरन। जिसको डिफिनीशन से मेटल होना चाहिए वो नॉन मेटल है। और 3 लेड और बिस्मथ, Sn, Pbn, Bi, जिसको डेफिनेशन से नॉन मेटल होना चाहिए वो मेटल हो गया। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए, यही सब बात याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम और बोरन ये होना चाहिए मेटल, ये हो गया नॉन मेटल, ये हो गया इनर्ट गैस, नॉबल गैस। वैसे हाइड्रोजन में कंट्रोवर्सी है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दोनों से मिलता है फिर भी इसको मेटलवाइड नहीं कहते हैं। और 3 लेड और बिस्मथ ये मेटल है पक्का, इनको नॉन मेटल होना चाहिए। इस 3 में
बहुत कंट्रोवर्सी है। हाइड्रोजन न मेटल है न मेटल है, लेकिन मेटल नहीं मानते उसको। हीलियम तो नोबल गैस है, एक बोरन है जो नॉन मेटल है, पक्का ध्यान रहेगा। क्या सब? जिस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सारे मेटल्स होंगे, जिसमें ये 6 एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन, हीलियम, बोरन मेटल नहीं है, टिन, लेड और बिस्मथ मेटल हैं। ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी व्हिच इज लिक्विड, आप जानते ही। ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, लेकिन दो मेटल हैं गैलियम और सीजियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। आपको बुक में दिया हुआ है 303 केल्विन मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, 302 मतलब क्या हुआ 29 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जनरली मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन हैं गैलियम एंड सीजियम, इसे बोलेंगे हम लोग लो मेल्टिंग मेटल। ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो बचपन से, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी एक्सेप्शन है लेड, लेकिन हम लोग उसको मानते हैं। लेड इज नॉट गुड कंडक्टर, आप चाहें तो एक्सेप्शन लिख सकते हैं, लेड इज नॉट गुड कंडक्टर। नेक्स्ट है कि मेटल्स के प्रॉपर्टी आप जानते हो, दे आर मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, कंडक्टर एंड सोनोरस। Malleable means if you hammer it, it will flatten to give seeds. Ductile means you can draw wires. इसको मेल्ट करो, वायर ड्रॉ करो, वायर बन जाएगा। Lustrous means शाइन करता है, चमकता है। देखे होंगे आप कोई मेटल्स और जब लाइट पड़ता है तो शाइनिंग करता है। कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, और सोनोरस मतलब क्लिंकिंग साउंड होता है। किसी आपके घर में कोई मेटल का कोई वस्तु हो, उस पर पीटिए तो टन टन की आवाज आएगी। नहीं, महिलाएं बच्चियां पायल पहनती हैं चांदी की, चांदी के पायल होते हैं या सोने के होते हैं, और वो चलते हैं तो आवाज होती है ना, वही है सोनोरस, क्लिंकिंग साउंड। ठीक है। तो ये मेटल के खास प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ग्रुप 1, 2 के, वो उतने मैलिएबल डक्टाइल नहीं होते। ठीक है। सोनोरस नहीं होते। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, मींस दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। कैटायंस बनाएंगे, सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कैटायन बनाएंगे अपने वैलेंसी के हिसाब से। सोडियम Na+ बनाएगा, मैग्नीशियम Mg2+ बनाएगा, अल्युमिनियम Al3+ बनाएगा, और डी ब्लॉक वैलेंसी वेरिएबल होता है, Fe2+ ही बनेगा, Fe3+ ही बनेगा। ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं। मेटल देखिए सब में एक्सेप्शन है। वेरी हाई वैलेंसी का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, जी हाँ। कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। मैं जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड सब अल्कलाइन है। लेकिन अल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। नोट कर लो, जिंक, अल्युमिनियम, टिन एंड लेड। जिंक, अल्युमिनियम, टिन एंड लेड आर 4 मेटल्स जिसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे। जिंक, अल्युमिनियम, tin and lead, they give amphoteric oxide. Amphoteric means, sir?
Amphoteric means acidic and basic both. Amphoteric means acidic and basic both. जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। और कुछ मेटल के ऑक्साइड हाई वैलेंसी के एसिडिक भी होते हैं। ऑक्साइड्स इन हायर वैलेंसी आर एसिडिक, जैसे Mn2O7, CrO3, क्रोमियम का वैलेंसी 6 है इसमें और मैंगनीज का 7 है। ये सब एसिडिक हैं। वेरी हाई वैलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक। वैसे जनरल बात है कि वो बेसिक है। तो अब सोचो ना कि जो जनरल बात है वो तुमसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा? तुमसे तो जो एक्सेप्शन है वही पूछेगा। इसलिए एक्सेप्शन को याद करना जरूरी है। एक्सेप्शन को ध्यान रखिए, ठीक है? तो इतना बात हम बताए आपको मेटल्स के बारे में। मुख्य रूप से केमिस्ट्री में यही हुआ कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स आर alkaline basic. Some are amphoteric, and oxides and hydroxides in very high valency state are acidic also. मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं। इसे कसम से नहीं बोलेंगे किसी को मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ओनली, ठीक है? जनरल बात ऐसा ही है। लेकिन एनी क्वेश्चन? नहीं। Now come to non-metals. Non-metals मैंने कहा राइट में है केवल पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक पूरा मेटल है, टी ब्लॉक पूरा मेटल है। पी ब्लॉक में कुछ राइट साइड में जो एलिमेंट है वही नॉन मेटल है। ग्रुप से 13 से 18 की ओर जाएंगे धीरे धीरे 17 तक, तो नॉन मेटल का नंबर बढ़ता जाएगा। नॉन मेटल्स के वैलेंस सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो नॉन मेटल है। देखो फास्फोरस 15 क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 ना। ये नॉन मेटल है। जिसके वैलेंसी सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन मेटल है। इसके 3 एक्सेप्शन आपको मालूम है। 3 लेड एंड बिस्मथ। 3 और लेड के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो मेटल हैं। बिस्मथ के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन वो मेटल हैं। और बोरन के वैलेंसी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो नॉन मेटल है। एक बार उसी को रिपीट कर दो। बोरन है नॉन मेटल, जिसको डिफिनीशन से मेटल होना चाहिए। और 3 लेड और बिस्मथ है मेटल, जिसको डिफिनीशन से नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है। नॉन मेटल्स भी जनरली सॉलिड होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। बड़ा सुंदर बात है, मेटल्स मॉलिक्यूल नहीं बनाते, याद रखिए। आयरन का मॉलिक्यूल देखे हो कभी? Fe2, Fe3 सुने हो? गोल्ड का मॉलिक्यूल होता है, सिल्वर का होता है, टीन का होता है, मैंगनीज का होता है? नहीं, ये सब क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड। बहुत सारे करोड़ों अरबों एटम एक साथ रहेंगे। छोटा सा लोहा का पिन लेंगे, उसमें भी अरबों एटम है। लेकिन नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल बनाता है। याद करो ना, H2 2 H रहता है साथ।
F2, Cl2, Br2, I2, सुने, N2, O2, O3, P4, S8, ये सब क्या है? डेफिनिट एटम है। क्लस्टर में इनडेफिनिट है, मॉलिक्यूल में डेफिनिट है कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, सब बोलते हैं डाई एटॉमिक। O3 हुआ ओजोन, ट्राई एटॉमिक। P4 फास्फोरस हुआ टेट्रा एटॉमिक। सल्फर S8 हुआ ऑक्टा एटॉमिक। ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें देखो हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, C60 को क्या कहेंगे सर? ब्रोमीन लिक्विड है, C60 इज आल्सो मॉलिक्यूल। जब डिफिनिट नंबर ऑफ एटम हो गया तो मॉलिक्यूल हो गया। सर वो कौन सा एटॉमिक हुआ सर? 60 को क्या बोलेंगे? 60 को क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक सर। हाँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? यस, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल, लिक्विड है, याद रखो। ओनली मरकरी इज लिक्विड मेटल एंड ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन ओनली, याद रखिए। सब ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत काम आएगा। देखिए वो ऐसा होता है कि हमको जानकारी रहती है लेकिन ध्यान में तुरंत नहीं आता है, तो उस समय कंफ्यूज करते हैं कहीं और कोई होगा क्या। इसे क्लियर रहना चाहिए दिमाग में कि मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल, दूसरा कोई नहीं। कहीं ऑप्शन रहेगा लिक्विड मेटल में तो मरकरी खोजेंगे और कहीं खोजेंगे। उसी तरह ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ओनली 2 ही लिक्विड एलिमेंट है, मरकरी लिक्विड मेटल, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल। गैस भी हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, फ्लोरीन 4 एंड क्लोरीन 5। 5 नॉन मेटल हैं जो गैस है, बाकी सब सॉलिड है। बोरन सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है। ठीक है, छोटी फैमिली इसकी है, तो सॉलिड भी है, कुछ गैस भी है और एक ब्रोमीन है जो लिक्विड है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जनरल ट्रेंड है। नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन बोरन और कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। बोरन एंड कार्बन आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, याद रखो नॉन मेटल में। अदर नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग है। बोरन एंड कार्बन आर हाई मेल्टिंग नॉन मेटल्स, ऐसे ही लाइन सब याद रखिए। बोरन एंड कार्बन आर हाई मेल्टिंग नॉन मेटल्स। Non-metals are generally not conductor, they are insulator. लेकिन आपको मालूम है ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ग्रेफाइट इज एन इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉप है, कार्बन का इलेक्ट्रॉप। कोक, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, और अभी बच्चा बोला C60, बकमिस्टर फुलरिन कहते हैं उसको, बक्की बॉल, ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉप है। तो उसमें ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रॉप है जिसे पेंसिल बनता है, लेड पेंसिल, वो कंडक्टर है। उसका इलेक्ट्रोड भी बनता है, इलेक्ट्रोड कहीं भी बैटरी समय देखते हो काला सा रॉड रहता है, वो ग्रेफाइट का ही रहता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब they gain electron and form anions. They gain electron and form anions because they have electron less than octet. इनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहता है,
वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और लेकर एनाइंस बनाते हैं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस O2 माइनस S2 माइनस, ये सब एनाइन बनाते हैं बाय गाइनिंग इलेक्ट्रॉन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये जो सॉलिड है वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब टूटने वाले, टूट जाते हैं, उसको हैमर करेंगे, दे विल ब्रेक इनटू पीसेज, ठीक है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक होंगे, CO2, SO2, SO3, P4O10, ये सब क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड होंगे। मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, ठीक है। तो आपने ये गौर किया होगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम आने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। टेबल देखना घर पे और देखना उसमें, जो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, और जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो हर राइट वाला लेफ्ट वाले से मोर नॉन मेटलिक है, राइट वाला मोर नॉन मेटलिक है, और हर डाउन वाला टॉप वाले से मोर मेटलिक है। ऊपर से नीचे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, याद रख, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब तीसरा है मेटल वाइट। मेटल बता दिया आपको, इसको हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। ये है जिनका प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों से मिलता है। इसमें है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। आप देखेंगे टेबल में मेटल नॉन मेटल के बीच में एक डायगोनल लाइन है, उसी लाइन में आते हैं ये सब, और ये कहलाते हैं मेटलॉइड। दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। कोई दिक्कत? मतलब they can form cations also, they can form anions also. Their oxides may be basic, may be acidic. और नेक्स्ट है नोबल गैसेज। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 देखा होगा आपने। 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 एलिमेंट हैं। इन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, रेयर गैस कहते हैं। रेयर गैस इसलिए कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इनका अमाउंट बहुत कम है एटमॉस्फेयर में। रेयर मतलब जो कम मिलता है। इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं कि जब पता चला था दे वेर केमिकली इनर्ट, ये ना आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते थे और न किसी दूसरे से कंबाइन करते थे, उनका नाम जो है इनर्ट है। इनर्ट है, निष्क्रिय है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहले नाम था, सब गैस है, ऑल द 6 आर गैसेज। तो पहले नाम इसलिए कि था इनर्ट गैस या रेयर गैस। अब देखा गया है कि जेनन के कंपाउंड तो बन गए 1962 में। 1962 में जेनन कंपाउंड बन गए। जेनन के फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड, काफी कंपाउंड पता है। जेनन के बाद रेडन आता है। लोग गेस करते हैं साइज के हिसाब से रेडन को भी कंपाउंड बनाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि रेडन रेडियो एक्टिव है, उसका लाइफ ही बहुत कम है, और उसके साथ उससे जो रे निकलता है वो खतरनाक है, तो कोई एक्सपेरिमेंट बहुत नहीं करना चाहता। अब नाम होगा नोबल। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन करे ही नहीं, और नोबल मतलब जो कम रिएक्शन करे। अभी भी बहुत लेस रिएक्शन होते हैं, सो आजकल उसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। उसी का नाम नोबल गैस है, उसी का नाम इनर्ट गैस है,
उसी का नाम रेयर गैस है। ये सभी 6 एलिमेंट आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर पर गैस है। सबों का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल S2P6 सब में देखेंगे आप, हीलियम को छोड़कर। हीलियम में क्लोज सेल है, हीलियम एक ही ऑर्बिट है जो फुलफिल्ड है। हीलियम हैज कंप्लीटली फिल्ड सेल, others have stable octet configuration, so they neither lose electron nor gain electron. वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न देते हैं, न केटाइन बनाते हैं न एनाइन बनाते हैं, बनाते ही नहीं। ठीक है, they are monoatomic. Monoatomic means they do not form molecules, अकेले रहते हैं वो। ध्यान दो, मेटल्स क्लस्टर बनाता है, झुंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम रहता है, अनकाउंटेबल। और नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल बनाता है, डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। और इनर्ट गैस अकेला रहता है, न मॉलिक्यूल बनाता है न क्लस्टर बनाता है, इसीलिए गैस है। अकेला अकेला रहेगा वो गैस है, यू डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। उसकी पहचान ये दो है, CP/CV रेशियो 1.66, ये टेस्ट है, आप याद रखिए। मोनो एटॉमिक गैस का CP/CV रेशियो 1.66 होगा। यहाँ Cp है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिटेल पढ़ेंगे आगे, खासकर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो अभी आप याद रखिए इसका रेशियो 1.66 होगा, तो मोनोएटॉमिक है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, तो 0 बॉन्ड बनेंगे, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे हाउ कैन यू प्रूव दैट इनर्ट गैसेज आर मोनोएटॉमिक, तो क्या बोलेंगे आप? इट्स CP/CV रेशियो 1.66 and bond order is 0. ठीक है? Sir, what is the meaning of CV? Heat capacity at constant volume is CV, and heat capacity at constant pressure is CP. You will learn heat capacity in physics in heat chapter, and also some part in chemistry in gaseous state. वैसे मोटा मोटी हुआ, हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। नोट कर लो, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हैं तो Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालते हैं तो Cv। ठीक है, क्या हुआ? CP/CV, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वह हुआ हीट कैपेसिटी, सिंबल हुआ C। अब ये वैल्यू हम किस कंडीशन में निकालें? अगर कांस्टेंट प्रेशर पर निकाले उसे Cp कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाले उसको Cv कहेंगे, और इसका रेशियो 1.66 होगा। समझे? अब पूछो क्या क्वेश्चन पूछते? Any question, any mind? किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। Any question? है किसी को क्वेश्चन? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पिछला पढ़ रहे हैं आप लोग जो बाद में आए हैं, पिछला पढ़िए और क्वेश्चन पूछिए हमसे जो दिक्कत होती है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो।
सर नॉन मेटल से लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नहीं, नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता है। आयोडीन नॉन मेटल है ना। Iodine is non-metal, but iodine is exception. It has some luster. ओके। और बोलिए। Any more question? चलो। इसमें 2 वीडियो बना